Good morning to all of you, and I'm again welcoming you all in IIT Manthan. Let us start with the topic. So, we are continuing with the chapter motion. So, today we are going to derive the equation of motion with the help of graph. It means we are analyzing the graph and using graphical analysis, we are trying to derive the equation of the motion. So, first of all, I would like to tell you that there are three equations of motion. So, equation of motion. So there are three equation of motion. So that is number 1, v is equal to u plus at. Number 2, s is equal to ut plus half at square. Number 3 is v square is equal to u square plus 2as. ठीक. So there are three equation of motion in one dimension. एक अगर मैं एक डायमेंशन की बात कर रहा हूं मींस आइदर वी आर गोइंग अलोंग x और वी आर गोइंग अलोंग y. So while going along x, the equation of motion will be like this: v is equal to u plus at, s is equal to u to half at square, and v square is equal to u square plus 2as. So here all the terms are having their usual meanings. Usual meaning क्या है कि स्टैंडर्ड्स नोटेशंस क्या है कि कहीं भी अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज कर रहा हूं तो क्या यूज कर रहा हूं, u यूज कर रहा हूं. कहीं पर भी मैं अगर फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज कर रहा हूं तो क्या यूज कर रहा हूं, v कर रहा हूं. स्मॉल a is representing acceleration, t is the time, s is the distance or displacement. So it means here मैं लिख रहा हूं, so here u is initial velocity, v is final velocity, okay. S is distance or displacement covered, clear, and t is the time, and last is a is acceleration, clear. So in these three equations of motion, the first is v is equal to u plus at, second is s is equal to ut plus half at square, and third is v square is equal to u square plus 2as, clear. So इन तीनों इक्वेशंस में जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं उनके अपने अपने यूजुअल मीनिंग है. मींस I am using here standard notations, that is u is initial velocity, v is final velocity, t is the time taken, s is the distance or displacement, and a is the acceleration of the body or the object, clear. So now we are trying to derive all the three equations of motion with the help of graphical analysis. So इसके लिए हम कुछ assumption लेंगे कि let us assume the body is डिस्क्राइबिंग लीनियर मोशन. तो उस लीनियर मोशन में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है. हम मान के चल रहे हैं कि बॉडी आपका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रही है. कहां से, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u से. इट मींस बॉडी इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी नॉट जीरो बट हैविंग सम वेलोसिटी इज u. इट मींस उस बॉडी की कोई ना कोई वेलोसिटी है एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय u, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी. सो इट मींस u से जब उसने स्टार्ट किया, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग विद एक्सेलेरेशन a, और जैसे ही वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है a से, तो उसने एक वेलोसिटी को एक्वायर किया, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी v. मींस u से लेकर v तक जाते हुए उसका जो एक्सेलेरेशन हुआ वो क्या हुआ, वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हुआ, दैट इज a, क्लियर. तो इसके यहां से रब कर रहा हूं. So you have to remember these equations in sequence. Sometime it may be asked what is the first equation of motion.
means v is equal to u plus at. So sequence is important. You cannot interchange the sequence. Sequence important है इसमें क्योंकि ये स्टैंडर्ड है कि फर्स्ट क्वेश्चन मोशन क्या है, v is equal to u plus at है, सेकंड क्या है, s is equal to ut plus half at square, and third is v square is equal to u square plus 2as. Please listen carefully. और मैंने आपको पहले बताया है कि इन चीजों का अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंस है कि u का मीनिंग अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग है, v इज ऑल्सो यूज फॉर सम स्टैंडर्ड मीनिंग, कि जो सिंबल्स हैं यूज हुए हैं वो आपके स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो हर जगह सेम ही रहते हैं। u इज फॉर ऑलवेज यूज फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v इज फॉर फाइनल वेलोसिटी, a इज फॉर एक्सीलरेशन, t इज फॉर टाइम टेकन, एंड s इज यूज फॉर इधर फॉर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। क्लियर? चलिए, let us make the graph and try to analyze the graph, and with the help of graph we are deriving the equation of motion. So along x-axis here is time in second. So along y-axis we are taking velocity. That is in meter per second. Okay, that's fine. So now let us take the linear motion of the body, and in that linear motion of the body is having starting initial velocity u. It means body की initial velocity जीरो ना होकर के क्या है, कोई velocity u है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी यहां स्टार्ट कर रही है, and the body is having initial velocity u and it is uniformly accelerating with an acceleration a, and with this acceleration it is reaching the final velocity v. It means this is sorry, so this is the slope, okay, so this is your final velocity, final. So that it is take a point, it is b, it is c, it is d. Clear? So if this is the initial velocity, it means that from here to here it is u, or you can say from here to here it is how much, u, and from here to here means यहां से कितना है, v है, और ये कितना बनेगा, दिस इज योर v माइनस u. क्लियर? ये कितना बनेगा, v माइनस u. एंड so while accelerating with an acceleration a from initial velocity u to final velocity v, the time taken is t. तो टाइम कितना लगा, t. Let us assume it is t. तो ये 0 है, ये t. Clear? So now we have to derive what first equation of motion. तो पहले हमने क्या अज्यूम किया कि बॉडी का मोशन लीनियर है, नंबर 1. नंबर 2, तो पहला क्या है इसका, फर्स्ट पॉइंट इज लीनियर मोशन. क्लियर? नंबर 2, तो मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे. तो मीन्स कंसिडर द बॉडी इज इन लीनियर मोशन, मीन्स बॉडी इज मूविंग इन लाइन along one dimension. So and body is having initial velocity, some initial velocity, that is u, and it is uniformly accelerating.
uniformly accelerating with A, and A is the acceleration, and after some time t, final velocity is v. क्लियर? मीन्स बॉडी क्या है, लीनियर मोशन में है, और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना होकर के क्या है, कोई ना कोई वेलोसिटी है, लेट अस अज्यूम इट इज u. तो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी द बॉडी इज एक्सीलरेटिंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दैट इज a. मीन्स u से लेकर जब उसने मोशन स्टार्ट किया वो क्या कर रही है, वो एक्सीलरेट कर रही है. मीन्स अब एक्सीलरेट का मीनिंग क्या होता है, जब भी हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं इट मींस देयर विल बी इंक्रीज इन वेलोसिटी. क्लियर? तो अगर वो स्लोप इंक्रीजिंग चल रहा है तो वो क्या होगा, ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर स्लोप डिक्रीजिंग चल रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. ठीक है, पहले बात कर चुके हैं इस चीज में. सो हियर फ्रॉम u टू v मींस फॉर एक्वायरिंग द फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t, द टाइम टेकन इज t. तो टाइम टेकन क्या है, t है, और a क्या है, एक्सेलेरेशन है यूनिफॉर्म, और बॉडी क्या है आपकी, वेलोसिटी u है. ये कंडीशंस है इनकी. तो इट मींस अब यहां पर क्या होगा, हमें निकालना है. अब देखिए ये ग्राफ है हमारा, ठीक. तो किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, हमने किया है, इसका सिग्निफिकेंस भी किया है. द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी किस एक्सीलरेशन से चल रहा है, मींस उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है. तो हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका स्लोप इंक्रीजिंग है इट मींस द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और अगर स्लोप डिक्रीजिंग है इट मींस वेलोसिटी डिक्रीजिंग. तो अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी, इट मींस एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि उस केस में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा होगी. अगर आपका स्लोप डिक्रीजिंग है इट मींस फाइनल वेलोसिटी कम होगी, मींस वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, इट मींस एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, एंड दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. So let us try. So AB. So AB is the slope here. So we know that slope AB can be written as BC by AC. BC by AC. Because slope is also written as tangent of theta if it is angle theta. So in triangle ABC, this is a right angle triangle, so this is perpendicular, this is base, tangent of theta will be equal to perpendicular by base, so tan theta is equal to BC is perpendicular and AC is base. So BC is what, BC कितना है, V minus U and AC कितना है, AC is T, and what is AB, तो AB क्या होगा, A होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सीलरेशन. वो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो बाद की बात है, ठीक. तो ए क्या आ गया, v minus u is equal to t, and from here we can write v minus u is equal to at, clear, and v is equal to u plus at. So this is the first equation of motion. This is the फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर है? सिंपली हमने क्या किया, हमने ग्राफ के स्लोप को पकड़ा, और स्लोप को पकड़ते हुए हमने इसको डिराइव कर दिया, क्योंकि स्लोप क्या बताता है हमें, स्लोप इज टेलिंग अस अबाउट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, इट मींस स्लोप इज इंक्रीजिंग, सो a विल बी पॉजिटिव, इट मींस a इज इक्वल टू v minus u by t. तो tan थीटा कितना आ गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, so this is slope of a graph will be given by tangent theta. ठीक है, थीटा क्या होगा, थीटा वो एंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ है, so this is the angle theta. So here angle theta is along time axis, so theta is this, so tan थीटा क्या आ गया, perpendicular by base, that is v minus u, because CD is u, इतना आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो ये कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज v minus u. क्लियर?
सो नाउ ए क्या आ गया, v माइनस u बाई टी, एंड v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम. So that is your derivation of first equation. In this way we are deriving the first equation of motion. Okay, चलिए आगे चलते हैं. मैं ये रब कर रहा हूं यहां पर. अब बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब सेकंड इक्वेशन मोशन में क्या करेंगे, क्योंकि देखो सेकंड इक्वेशन मोशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो हमें ये डिराइव करना है. s क्या है यहां पर, डिस्टेंस. चलिए अब देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जब पहली इक्वेशन डिराइव की तो वहां पर हमें क्या निकालना था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. और हमें पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ग्राफ फॉर फ्रॉम ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी डिराइव्ड बाय यूजिंग स्लोप. तो हमने वहां को स्लोप को पकड़ा. अब यहां पर क्या होगा, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस कहां से आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व विल टेल अस अबाउट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. इट मींस वी आर टेकिंग द एरिया. हम क्या पकड़ेंगे, यहाँ पे एरिया पकड़ेंगे. क्या हम एरिया निकालेंगे यहां पर, क्लियर है. तो एरिया ऑफ ए बी सी डी मींस ओ ए बी डी, ठीक है. तो एरिया ऑफ ओ ए बी डी में आई कैन राइट, वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC plus one is area of rectangle what OAC. क्लियर. तो OABD में जब मैं एरिया निकालूंगा तो मेरा क्या होगा, आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ ऑफ BC perpendicular and base is AC. Clear? Plus it will be this OA multiplied by OC. ठीक है. BC कितना है, BC कितना है, BC is V minus U. BC V minus U multiplied by AC. AC is T, so it is half. Fine, okay. So BC कितना है, BC V minus U है, because इतना V है इतना U है, तो ये क्या आएगा, V minus U आ जाएगा. ठीक है, into AC. AC is time, this is time. Clear? Plus OA. OA is U and OC is again OC is AC. OA into AC. Sorry, AC is T. Clear? Because this multiplied by this multiplied by this will give you the area of rectangle. So we can write U into T, and we are finding the distance because distance is equal to, that is given by S. So S is equal to, so what is V minus U? So from the first equation where you have written A is equal to V minus U by T, क्योंकि AB क्या लिखा था हमने लिखा था कि स्लोप AB will be equal to this क्या है, BC डिवाइड बाई AC. कितना आया था, V minus U by T. That means V minus U क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, AT into T plus UT. It means S is equal to UT plus half AT square. कितना आ गया, S is equal to UT plus half AT square. So this is the derivation of second equation of motion using graphical analysis. Clear?
क्या किया कि हमें निकालना है डिस्टेंस, बिकॉज एस क्या डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस कहां से आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है वो कहां से मिलेगा मुझे, सो वी कैन यूज द एरिया अंडर द कर्व. तो एरिया अंडर द कर्व फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव अस द distance or displacement. So I have already told you that if the graph is lying above the x-axis, then the distance and displacement will be the same. So कोई इश्यू नहीं है, उसमें डिस्टेंस निकाल रहे हो या डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, क्लियर. सो इन दिस वे वी आर यूजिंग एरिया अंडर द कर्व. सो OABD in trapezium OABD I have written area of triangle ABC plus area of rectangle OACD will give you the total area of the curve, and that will be this one. So here v minus u into t, u into t, v minus u क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, v minus u means AB, स्लोप क्या आया था BC by AC, टेंजेंट थीटा क्या आया था, परपेंडिकुलर by base, so v minus u by a is equal to by t is equal to a, तो कितना आ गया v minus u, v minus u is equal to 80. I have put the value of v minus u from first question, so it is 80. So ut plus half AD square, and it is derived. So this is the second equation of motion. Clear? Now come on to third equation of motion. तो थर्ड में क्या होगा, so let us try to find the area of trapezium. क्या trapezium है, OABD. So what is area of trapezium? Half of sum of parallel sides. Parallel क्या है, OA है और BD है. क्या है, OA और BD. OA plus BD into distance between two parallel sides. Either you can take OD or you can take AC. तो AC ले लेते हैं. ठीक है, we are doing again. So we are trying to find the area of trapezium. So the area of trapezium will be equal to half of sum of parallel sides multiplied by the distance between the two parallel sides. So here parallel side is OA and it is BD. So BD plus OA multiplied by AC. Clear? So half of OA, OA कितना है, U है, प्लस BD कितना है, V है, इंटू AC, AC इज T, AC इज T. और हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये भी अब क्या है, डिस्टेंस है. क्या है, डिस्टेंस, बिकॉज वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड हियर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. सो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या था, v माइनस यू बाय टी है. तो t क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम दिस टू दिस, मीन्स पहले वाली इक्वेशन जो मोशन हमने निकाला था वहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं, t क्या आएगा, v माइनस यू बाय ए आएगा. क्या आएगा, v माइनस यू बाय ए. सो पुट द वैल्यू ऑफ t हेयर फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन. कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v multiplied by v minus u. So this is a plus b, a minus b. So we can write it like this, v plus. So a plus b, a minus b, how it is, a square minus b square divided by 2. और ये क्या था, by a था, by 2a, and it is equal to s. So it is how much, so v square minus u square is equal to 2as, means we can write v square is equal to u square plus 2as. So this is the third equation of motion. ये क्या है, ये third equation of motion है. Clear? Any doubt? ठीक है. So in this way we can derive all the three equation of motion with the help of graphical analysis. And देखो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कीजिए, here we are using only velocity time graph for deriving all the equation of motion. तो it means मैंने पहले भी आपको बताया था कि velocity time graph आपका जो ग्राफ है
वो आपका इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बिकॉज यूजिंग दिस ओनली ग्राफ, दिस इज द ओनली ग्राफ बाय विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन डिराइव एनीथिंग, यू कैन फाइंड एनी क्वांटिटी, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, वेलोसिटी हो, स्पीड हो, एवरेज हो, एवरेज वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, कुछ भी हो, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके कुछ भी निकाल सकते हैं. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट ग्राफ एज फार एज कंसर्न टू ऑल द क्वांटिटीज. ठीक है, क्लियर? तो ये तो था आपका ग्राफिकल पोर्शन, कि अगर आप ग्राफिकल मेथड से निकालना चाहो वो निकाल सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है अल्टरनेटिव तरीका आ जाता है. अल्टरनेटिव में क्या होता है, व्हाट यू विल डू इन अल्टरनेटिव मेथड. तो क्या होगा, ए क्या होता है, ए इज एक्सीलरेशन, इट इज इक्वल टू v माइनस u. व्हाट इज एक्सीलरेशन, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. सो a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t. इट मींस v minus u is equal to at. So this is the first equation of motion. So this is the alternative method to derive the first equation of motion. So now come on to second equation. तो जनरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. सो एस एवरेज क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी मेरी u है, फाइनल v है. सो व्हाट इज द एवरेज, u प्लस v बाय 2, u प्लस v बाय 2 इंटू t इंटू t. ठीक है, तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, एवरेज स्पीड इंटू टाइम. सो एवरेज स्पीड क्या है, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी. तो यहां पर v की वैल्यू क्या है मेरी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो आई हैव सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v. v की वैल्यू क्या है, ये मैंने यहां पुट कर दिया. तो कितना बन गया, इट विल बी s इज इक्वल टू ut. देखो u इंटू टी ut, u इंटू टी ut, तो 2 ut बन गया. 2 ut डिवाइड बाई 2 कितना बना, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. इट मींस दिस, इन दिस वे यू विल डिराइव द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सिमिलरली t, अगर इसी को यूज करके यहां पर t लिखूं तो t क्या होगा, s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू v माइनस u बाई a. सो फ्रॉम हेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ t. t क्या होगा, v माइनस u बाई a फ्रॉम हेयर, एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ t हेयर. तो यहाँ पे t था, ये कितना था, s इज इक्वल टू इंटू t, t की वैल्यू पुट की, ये पुट की, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b, a माइनस b. तो क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल टू s. इट मींस v square minus u square is equal to 2as and v square is equal to u square plus 2as. So in this way you can also derive this equation of motion alternatively. So only thing is that you have to take care कि चीज क्या पूछी हुई है और किस तरह से निकालनी है. So this is the derivation of equation of motion इन वन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस. ध्यान रखिएगा कि यहां पर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब भी हम वर्टिकल मोशन या वाई की बात करेंगे तो वहां पे चेंज आएगा काफी. वहां पे एक्सेशन ए नहीं रहेगा, वहां पे जी हो जाएगा. जो डिस्टेंस एस है वो हाइट हो जाएगा. ठीक है, बाकी चीजें वही रहेंगी. तो उस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो आई थिंक this is sufficient for this lecture. We will continue in the next lecture. Till then, take care. Thank you so much.